ہمارے پڑوس میں خالہ شبو رہا کرتی تھی۔ شہاب ان کا بیٹا تھا۔ اس کی بازار میں کپڑے کی دکان تھی۔ ایک روز قریبی قصبہ سے کچھ خواتین کپڑا خریدنے آئیں جو تمام برقعوں میں ملبوس تھیں۔ انہی میں ایک لڑکی سائرہ بھی تھی جس نے خود کو چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ سائرہ جب اپنے لیے جوڑا پسند کر رہی تھی، اس کے چہرے سے چادر سرک گئی اور شہاب نے اس کی ایک جھلک دیکھ لی۔ جھلک دیکھتے ہی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ دل میں ٹھان لی کہ شادی اسی سے کروں گا، اسے حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا۔ عورتیں حسب ضرورت کپڑے خرید کر چلی گئیں، مگر شہاب کا چین و سکون ختم ہو گیا۔ اب اسے کسی پل چین نہ تھا۔ بار بار اسی نقاب پوش حسینہ کی جھلک نظروں میں جھلملائی جاتی تھی اور اس کا قرار لٹ جاتا تھا۔ کبھی کبھی عمر بھر کا ایک لمحہ، کسی کی کہی ہوئی ایک بات اور کسی مہوش کی ایک جھلک انسان کو مجنوں بنا دیتی ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے، دنیا کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ شہاب کا اب کاروبار میں دل نہ لگ رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان اس لڑکی کی طرف تھا۔ دکان پر جو لڑکا ملازم تھا وہ بھانپ گیا کہ مالک کو دل کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ اس نے باتوں باتوں میں چادر والی حسینہ کا ذکر چھیڑا تو شہاب کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ اس گفتگو کو دلچسپی سے سننے لگا۔ دوسرے ملازم لڑکے کو ارشد بتا رہا تھا، وہ چادر والی لڑکی جس کا نام سائرہ ہے میری بہن کی پڑوس میں رہتی ہے۔ یہ خالہ شبو کی بیٹی ہے۔ ماں سلائی کرتی ہے، تبھی ان کا گزارا ہے اور کوئی کفیل نہیں ہے۔ سائرہ کا والد فوت ہو چکا ہے۔ یہ معلومات شہاب کے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھی۔ اسے یہ جان کر بہت سکون ملا کہ جو حسینہ اس کے من کو بھائی تھی وہ ایک غریب بیوہ کی بیٹی تھی۔ اگر امیر ہوتی تو اسے حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا، مگر غریب کی بیٹی کو اپنانے کے لیے کچھ زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے۔ کچھ دن سوچ بچار کے بعد موصوف شہاب نے ماں کو اعتماد میں لیا، حال دل بیان کر کے درخواست کی، جا کر سائرہ کی ماں سے رشتہ طلب کرو۔ ماں نے جواب دیا، تم شادی شدہ ہو اور بیوی تمہاری 8 برس سے روٹ کر میکے بیٹھی ہے، دوسری شادی کسی کمسن لڑکی سے کرنے کے بجائے اپنی بیوی کو منا کر لے آؤ، اس میں اللہ کی خوشنودی اور تمہاری بہتری ہے۔ ایسے دلائل سننے کو وہ قطعی تیار نہ تھا۔ ماں سے الجھنے لگا۔ تبھی ماں کو اندازہ ہو گیا کہ بیٹا پور پور سائرہ کے حسن کا اسیر ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اسے سمجھانا بیکار ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی کہ کیا کرے، کسی طرح بیٹے کے دل کا قرار ڈھونڈ لائے۔ بہو کے میکے سے چند بزرگ آئے اور اصرار کیا کہ آپ لوگ بہو کو گھر لاؤ اور اسے بساؤ، ورنہ طلاق دے دو، تاکہ سمن کے والدین اس کی شادی کسی اور جگہ کر دیں۔ شہاب کی بیوی ماں کی رشتہ دار تھی اور یہ شادی اس نے والدہ کی پسند سے کی تھی، تاہم بیوی سے پہلے روز سے نہ بنی تھی۔ وہ اسے بسانا نہ چاہتا تھا۔ بات بات پر چک چک ہوتی اور وہ بیوی پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ پھر سمن تنگ آ کر میکے چلی گئی۔ کئی برس گزر گئے، وہ اسے لینے نہ گیا۔ سمن کے والدین شروع میں صلح کی کوشش کرتے رہے اور اب وہ کہتے تھے، بسانا نہیں ہے تو طلاق دے دو، ہماری بیٹی کی زندگی اس طرح برباد نہ کرو۔ شہاب نے ان پیغامات کا جواب نہ دیا تو وہ لوگ فیصلہ کن بات کرنے آ گئے۔ اب شہاب کو ہر صورت فیصلہ کرنا تھا، سو اس نے ٹھان لی کہ اگر سائرہ کا رشتہ مل گیا تو پہلے بیوی کو آزاد کر دے گا۔ ماں نے بیٹے کی ضد مان لی اور ساتھ والے قصبے رشتے طلب کرنے چلی گئی۔ اس نے لڑکی کے گھر کی غربت دیکھتے ہوئے اس کو 50,000 کی پیشکش کر دی۔ گاؤں میں رواج تھا، لڑکا امیر ہو اور لڑکی کا تعلق غریب گھرانے سے ہو تو رشتے کے اخراجات کے نام پر لڑکے والے لڑکی کے والدین کو معقول رقم ادا کرتے ہیں۔ یوں رشتے کے بدلے غریبوں کی مالی معاونت ہو جاتی تھی۔ یہاں بھی یہی رسم کام آ گئی۔ سائرہ کی ماں نے رقم کے بدلے بیٹی کا رشتہ دینے پر آمادگی ظاہر کر دی اور شہاب کی جھولی مرادوں کے پھولوں سے بھر گئی۔ اس نے پہلی بیوی کو آزاد کر دیا، دوسرے گاؤں جا کر سائرہ کو بیاہ لانے کا اہتمام کر لیا۔ وہ اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا، سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اتنی جلدی اور آسانی سے اسے اپنی من پسند نئی دلہن حاصل ہو جائے گی۔ اب ویران، بے آب
वग्याह जिंदगी एक हसीन ख्वाब की मानंद गुजरने लगी। कीमती मलबूसात, जेवर और दीगर सामान आराइश से सायरा के सामने ढेर कर दिए, क्योंकि इसके कपड़ों की बड़ी दुकान थी और माल व दौलत की कमी न थी। सायरा भी अपने नसीब खुल जाने पर शादां थी। सहेलियां इसकी पुरतैश जिंदगी पर रश करती थीं। एक दूसरे से हसरत से कहती थी, नसीब हो तो ऐसा। शाबी बीवी को दिलो जान से चाहता था। ये बात सारे गांव में मशहूर थी कि सायरा को मजनू मिल गया है और शहाब ने जब से मनचाही दुल्हन पाली है, इसकी खुशियों का ठिकाना नहीं है। वो पहले से कहीं ज्यादा खुश इखलाक हो गया। खुश इखलाकी और कारोबारी में खुशहाली का चोली दामन का साथ होता है। शहाब ग्राहकों के साथ हलीमी और खुश इखलाकी से पेश आने लगा। कारोबार में इजाफा हुआ और जो मंदी चल रही थी वो ना रही। कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। सभी के मुंह पर एक ही बात थी कि सायरा के आने से शहाब की खुशहाली में इजाफा हुआ है। ये बात शहाब ने भी ज़हन नशीन कर ली और वो बीवी की चाहत में डूबा गया। लोग इसकी पहली बीवी को याद करते थे तो इसे बदनसीब का लक़ब देते और दूसरी को खुशनसीब कहते। जाहिर है जिसको पिया चाहे वही सुहागन। सभी दिन एक से नहीं होते। कहते हैं कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें, कहावतें दुरुस्त होती हैं। एक रोज वो हो गया जिसका वहम गुमान भी ना था। एक मामूली से वाक़ये ने चैन सुकून गारत और आबाद घर को तहस नहस कर डाला। सायरा अपनी नंद के कंघी करके बाल संवार रही थी और सास चारपाई पर बैठी चावल चुन रही थी। अचानक एक सदा सुनाई दी, बूंदे, हार, चूड़ियां, परांदे ले लो, पाजेब खरीद लो। ये चूड़ी वाला कभी कभी इधर फेरी लगाता था। कस्बे से आता, खास तौर पर जब किसी घर में शादी ब्याह की तकरीब नजदीक होती या ईद का मौका होता। इसे खबर होती कि अब कस्बे वालों को इसकी जरूरत है। घरों में सुहागने, लड़कियां, बालियां भी इसकी सदा की मुंतजर रहा करती थी, क्योंकि इसके पास जो माल होता वो यहाँ नहीं मिलता था। शहर से खवातीन की दिलपसंद अशिया खरीद कर लाता और गाँव व कस्बे में फरोख्त किया करता। जहाँ सायरा रहती थी, अव्वल तो बाजार कोई खास न था। कुछ दुकानें थीं जिनमें ये माल मतलूबा दस्तयाब न होता था, लिहाजा चूड़ी वाले अपने टोकरों में ये सामान भरकर सर पर रखे गांव गांव सदा लगाते और दरवाजे पर पर्दा नशीन खवातीन पसंद करके खरीद लिया करती थी। इस रोज भी जब मिट्ठू की सदा कानों से टकराई, बूंदे, हार, चूड़ियां ले लो, परांदे ले लो, तो सायरा की नंद रेहाना का दिल उछलकर हलक में आ गया। वो दौड़ती हुई दरवाजे पर गई और मिट्ठू को पुकारने लगी। वो ऐसे ही पुकार का मुंतजिर था। फौरन आकर दरवाजे पर बैठ गया और टोकरा ड्योरी पर रख दिया, जहां घर की खवातीन अपनी मनपसंद चीजों का इंतखाब कर सकती थीं। दूसरी नंद बतूल ने टोकरे पर नजर डाली और पुकारने लगी, भाभी सायरा इधर आना, देखो वो कैसी शानदार चूड़ियां हैं, आओ मुझे बताओ कौन सी लूं। सायरा ने सास की तरफ देखा जैसे इजाजत तलब कर रही हो। वो बोली, हाँ हाँ जाओ देखो और तुम भी अपने लिए पसंद कर लो। ये चूड़ी वाला कभी कभार ही फेरे लगाता है, जाने फिर कब आए, ईद करीब है, जो पसंद आए ले लो। नंद भावज ड्योरी में बैठकर टोकरे से अपनी पसंदीदा चीजें उठा कर एक जानिब ढेर कर रही थी। इन्होंने हार, बूंदे और चूड़ियां पसंद कर ली। फिर बतूल ने कहा, लाला हमको चूड़ियां पहना दो। इसने कांच की दर्जन भर चूड़ियां दोनों कलाइयों में पहन ली। फिर वो उठलाकर सायरा से पूछने लगी, भाभी कैसी लग रही हैं? चूड़ियां बहुत अच्छी, जवाब मिला। तब वो बोली, तो आप भी पहन ले भाभी। सास ने कहा, हाँ हाँ दुल्हन, तुम्हारी पहली ईद है, दोनों कलाइयों में भर कर पहनो। सास की इजाजत पाकर इसने खूबसूरत लाल रंग की चूड़ियों का इंतखाब किया और मिट्ठू से बोली, ये पहना दो। इसने कलाइयां आगे कर दी और मिट्ठू ने इसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर चूड़ियां चढ़ाना शुरू कर दी। इत्तेफाक से शहाब इसी वक्त घर पहुंच गया। इसने जो बीवी का हाथ गैर मर्द के हाथ में पाया तो इसको बहुत बुरा लगा। मिट्ठू को गालियां दी और इसका टोकरा उठाकर ड्योरी से बाहर फेंक दिया। फिर सायरा को खींचकर घर के अंदर ले आया। इस गैर मुतवक्का रद्दे अमल पर वो घबरा गई। शहाब धाड़ने लगा, क्या ये तेरा यार लगता है?
क्यों तूने अपना हाथ एक गैर मर्द के हाथ में दिया? इसके साथ ही एक जन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पे पड़ा कि आंखों के आगे तारे नाचने लगे। बोल, क्यों तूने गैर मर्द को अपने हाथ को छूने दिया? बोल, वो क्या बोलती, जबकि यहाँ की कुछ औरतें चूड़ी वाले से चूड़ियां पहन लेती थीं। खुद इसकी बहन ने भी थोड़ी देर पहले पहनी थी। जब बार बार शहाब ने एक ही बात गुस्से में दोहराई, क्या लगता था वो? क्यों हाथ पकड़ाया इसे? यार लगता था। तू सायरा को भी गुस्सा आ गया। वो चिल्ला पड़ी, हाँ यार लगता था, मिलने आया था मुझसे चूड़ी वाला बनकर। ये सुनना था कि शहाब गुस्से से पागल हो गया। इसने आओ देखा न ताओ, बीवी को बालों से पकड़ लिया और इस कदर मारा कि वो बेहोश हो गई। तब वो मुंह से झाग उड़ाता घर से बाहर निकल गया। माँ और बहन की भी एक ना सुनी। 2 दिन बाद जब सायरा की हालत कुछ बेहतर हुई, सास ने कहा, बेटी शहाब तुझसे बहुत मोहब्बत करता है, तभी वो तेरे हाथ को किसी गैर मर्द के हाथ में देखकर बर्दाश्त न कर सका, और गैरत में ऐसे कलमात इसके मुंह से निकले हैं तो इसकी बातों को दिल पर न ले। बेहतर है कि 2-4 रोज के लिए मैके चली जा। जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तुझे लेने आ जाएगा। यूं सास के कहने पर वो मैके आ गई। 2 रोज बाद शहाब घर आया तो माँ से बीवी का पूछा। माँ ने कहा मैके गई है, ये ना बताया कि मैंने भेजा है। वो लाल बगोला हुआ कि मेरी इजाजत के बगैर क्यों मैके चली गई? इसने घर से कदम निकाला कैसे? मैके जाना ही था, मैं खुद इसे छोड़ आता। इसी वक्त वो सायरा के गांव पहुंचा। सायरा ने सुना कि शहाब आया है। गुस्से में तो थी, फौरन बराबर वाले घर चली गई। सायरा की माँ को भी गुस्सा था। तभी इसने दामाद को बुरा भला कहा कि तुमने नाहक मेरी बेटी को इतना मारा, हालांकि वो बदचलन नहीं है और ना किसी से इसका वास्ता है, फिर क्यों तुमने इसके साथ ऐसा सुलूक किया है? जो हुआ सो हुआ, आप सायरा को मेरे साथ भेजो, मैं लेने आया हूँ। इससे तो हरगिज न भेजूंगी। पहले गांव के चंद बुजुर्गों को लाओ, वो जमानत दें कि आइंदा तुम सायरा पर हाथ नहीं उठाओगे, तब भेजूंगी। इनकार सुनकर वो आपे से बाहर हो गया और सास को बुरा भला कहने लगा। शोर सुनकर पास पड़ोस के लोग आ गए। इन्होंने सायरा की माँ की तरफदारी की, जिस पर दामाद ने अपनी सख्त तौहीन महसूस की, क्योंकि इस मोहल्ले में इस बेवा औरत की सभी इज्जत करते थे। वो शहाब के मुंह से बदकलमात सुनकर खफा होने लगे। इन्होंने समझाना चाहा, मगर इस बंदे ने इस अमर को भी अहानत जाना। मोहल्ले वाले शहाब को मजबूर करने लगे कि अपने बुजुर्गों को लाओ, फिर सायरा को तुम्हारे हवाले करेंगे। शहाब तिल मिला कर रह गया। वो खाली हाथ लौट आया और गांव आकर अपने चंद दोस्तों के पास गया, सूरत हाल बयान की और इनसे मशवरा तलब किया। कुछ बदख्वाह दोस्तों ने इसको उकसाया कि तुम्हारी सास और इसके मोहल्लेदारों ने तुम्हारी बेइज्जती की है, गैरत है तो बदला लो। एक दोस्त ने कहा, जब किसी औरत से किसी गैर मर्द से ताल्लुकात हो तभी वो मैके में टिक जाती है और शौहर लेने आए तो छुप जाती है। पता करो कहीं तुम्हारी बीवी के किसी गैर से मरासन तो नहीं है। गर्ज ऐसे शक व शुबात दिल में डाले जिससे शहाब का दिमाग घूम गया। दोस्तों ने सलाह दी कि बीवी शौहर के पास वापस घर आने से इनकारी हो तो इसका बंदोबस्त कर देना चाहिए। यूं शहाब को साथ लिया और रात की तारीकी में सायरा की माँ के घर पहुंच गए। वो इनके घर की दीवारें फलांग कर सहन में आ गए। सर्दियों के दिन थे। माँ बेटी अंदर सो रही थी। आहट से माँ की नींद टूट गई। बेटी के सिरहाने 4 मर्द को पाकर चीख निकल गई। इन्होंने आगे बढ़कर माँ का गला दबा दिया और हमेशा के लिए इसे खामोश कर दिया। ये मंजर देखकर सायरा बेहोश हो गई। इन्होंने इसे बेहोशी के आलम में उठा लिया और खेतों से दूर वीराने में ले आए। शहाब ने दोस्तों से दरियाफ्त किया, अब क्या करना है? वो कहने लगे, जो गैरतमंद करते हैं वही करना है। ये बदनाम हो गई है। बीवी बनाकर रखोगे तो लोग तुमको बेगैरत कहेंगे और जीने ना देंगे। शहाब का दिमाग माऊफ था। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, सही हो रहा है या गलत। इतने में इसके 3 साथियों ने गड्ढा खोद लिया। बेहोश सायरा को इसमें डालकर ऊपर से मिट्टी भरने लगे और मिनटों में गड्ढे को पुर करके वो शहाब को साथ लेकर वापस थे। बदनसीब लड़की बगैर किसी कसूर एक मामूली बात पर जिंदा दरगोर कर दी गई
और गांव के जाहिलों के नजदीक ये एक गैरतमंदाना और काबिल फख्र कारनामा था जो इन्होंने आनन फानन अंजाम दिया था। इधर जब सायरा की मां के कत्ल की खबर गांव वालों को हुई, घर के दरवाजे पर इकट्ठे हो गए। मोहल्लेदारों ने कहा ये काम सिर्फ और सिर्फ शहाब का है। फौरन पुलिस को इत्तला की और वो शहाब को गिरफ्तार करके ले गई। जो कुछ हुआ माँ के रूबरू हुआ, लिहाजा वो बहुत गमज़दा थी। बेटे से जेल में मुलाकात करने पहुंची और इसे बुरा भला कहने लगी। तूने ये क्या गजब किया, सास को नाहक मार डाला और बीवी को गायब करा दिया। आखिर तूने ऐसा इनके किस जुर्म पर किया? माँ, मैंने उजलत में खुद बीवी को बदनाम कर डाला था। किसी गैर मर्द के हाथों में इसने अपना हाथ दिया था। मैं इस मंजर को बर्दाश्त न कर सका। सब लोगों ने ये बात मेरे मुंह से सुन ली है, तो अब मैं कैसे इनकी जबानें बंद कर सकता हूँ। ये लोग तरह तरह की कहानियां घड़ चुके हैं। हर शख्स गांव और कस्बे का बुरा भला कह रहा है कि शहाब की बीवी का चलन दुरुस्त न था, वो बदकिरदार औरत थी और इसके चूड़ी वाले से ताल्लुकात थे। खुद शौहर ने रंगे हाथों पकड़ा है। ऐसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। गैरत का तकाजा यही है कि इसे मार दिया जाए। ऐसी बातें सुनकर मैं असल किस्सा किसी को नहीं बता सका। बताऊं भी तो लोग कब यकीन करेंगे? वो मुझे ही झूठा और बेगैरत कहेंगे। तभी मुझे ये कदम मजबूरन उठाना पड़ा। और मैं ना सास को मारना चाहता था और ना सायरा को। ये काम मुझसे मेरे दोस्तों ने कराया है। क्या तुमने सायरा को भी मार दिया है? हाँ, मेरे दोस्तों ने इसको जिंदा कब्र में दफन कर दिया मेरी आंखों के सामने, और मैं इन्हें रोक ना सका क्योंकि वो मुझे बेगैरत कहते और गांव में किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहता। ये सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी थी। खौफ के मारे इसने ये भी ना बताया कि तुम्हारी बहन बतूल ने भी इसी मर्द से चूड़ियां पहनी थी। सारी हकीकत माँ को पता थी। इसमें बहू का कोई दोष न था, मगर वो गांव वाले की जबानों को बंद न कर सकी। बेटे की जान भी बचाना लाजमी थी, बस इसे बेटे की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी और हर एक को यही कहना पड़ा कि इसकी बहू के इस शख्स से नाजायज मरासिम थे जो चूड़ी वाला बनकर इनके दर पर आया था। शहाब बेटे ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया तो गैरत की वजह से सायरा का खून कर दिया। चंद साल जेल में सजा काट कर वो रिहा हो गया, मगर इसके बाद किसी ने इस शख्स को कभी मुस्कुराते नहीं देखा। इसको फलक था कि बीवी और सास के साथ इसने एक और हस्ती का भी खून किया है, और वो हस्ती इसकी बीवी के अंदर परवरिश पा रही थी। अपने बच्चे का भी वो कातिल था। ये खलिश अब किसी पहलू इसे चैन नहीं लेने देती थी। रिहाई के बाद कुछ दिन दुकान पर बैठा। दुकान गैर मौजूदगी में मुलाजिम चला रहे थे। इन्होंने काफी खसारा दिया। इस खसारे को शहाब पूरा नहीं कर सकता था। इसका दिमाग उलझा रहता। नौबत यहाँ तक पहुंची कि दुकान बंद हो गई और वो घर में बैठ गया। सारा दिन घर पड़ा रहता और सोचता रहता। इसे अपने जाहिल दोस्तों से भी नफरत हो गई। वो मिलने आते तो कहलवा देता कि घर पर नहीं है। रफ्ता रफ्ता इन्होंने आना छोड़ दिया। तन्हाई शहाब का मुकद्दर बन गई। इसको पल पल डसने लगी। इस शख्स को खबर थी कि ये अलमनाक वाक़या महज इसकी तबीयत के उबाल से वकूअ पजीर हुआ। वो एक गुस्सावर जल्दबाज किस्म का आदमी था, जिससे मोहब्बत करता टूट कर करता, और जब बदगुमान होता था फिर हकाइक की परवाह किए बगैर इस पर उल पड़ता था। शख्सियत की इस खामी ने घर उजाड़ा और इसके नाम 3 खून लिखे थे। अब वो रातों को जागता था, सायरा को याद करके रोता और पछताता, मगर गया वक्त हाथ नहीं आता, और पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। सोच सोच कर जाग जाग कर वो दीवाना हो रहा। लोग कहते थे इसका दिमाग चला गया है। दिनों नहाता नहीं है, हफ्तों कपड़े नहीं बदलता, खाना पीना नींद आराम सब भुला दिया है। ऐसे में आंखें वहशत से उबली रहती, गुस्सा बेपनाह आता, बिला वजह लड़ने और झगड़ने लगता। गांव वाले सभी कहते थे 3 कत्ल किए हैं तभी पागल हो गया है। इससे बच्चों कभी खून सर चढ़ गया तो हमको ही मार देगा। किसी के बारे में ऐसे ख्यालात पुख्ता हो जाएं तब लोग इससे दूर रहते हैं। वो शख्स मातूब ठहरता है तो और गुस्सेला और पागल हो जाता है, लोगों से घबराता है, वीराने में सुकून आता है। शहाब ने भी वीरानों में पनाह लेना चाहिए।
وہ مستقل قبرستان میں بیٹھنے لگا۔ جب لڑکے وہاں گزرتے، ایک میلے کچیلے شخص کو کسی نہ کسی قبر کے پاس بڑبڑاتے دیکھتے تو پاگل پاگل کہہ کر پتھر مارتے اور دوڑ جاتے۔ شہاب ان کو گالیاں دیتا، جواب میں پتھر مارتا یا ان کے پیچھے دوڑنے لگتا۔ وہ پاگل نہ تھا، پچھتاؤں کا شکار، غمزدہ تھا، کوئی غمگسار نہ تھا، اور احساس جرم نے اس کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔ تب گاؤں کے لوگوں نے اعلان کر دیا کہ شہاب پاگل ہے۔ کوئی قاتل ہو وہ معاشرے میں سما جاتا ہے، مگر جس کو سب پاگل قرار دے دیں وہ معاشرے میں نہیں رہ سکتا۔ لوگ اس معاشرے سے نکال دیتے ہیں۔ شہاب کا انجام یہ ہوا کہ ایک روز رات کے وقت دیوانگی میں نہر میں چھلانگ لگا کر اپنا خاتمہ کر دیا۔ مگر گاؤں والوں پر یہ صداقت واضح ہو گئی کہ کبھی انسان کو بات کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے اور نہ کسی معاملے میں کسی کو قتل کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔